خادم نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہوگا، لیکن آئیے کچھ باتیں میں بھی آج بتانا چاہتا ہوں. اور میرا ایمان ہے بہت ساری غلط فہمیاں آپ کی دور ہوں گی. کیونکہ دیکھیں جی متی رسول کی انجیل میں 24 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے اخیر زمانے میں جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور فی زمانے میں بہت قسم کی بدعت ہے. میرا کام نہیں کسی پہ پاؤنٹ آؤٹ کروں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فی زمانے میں بہت سارے ایسے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو روح القدس کو نہیں مانتے. بہت سارے ایسے ہیں جو صرف باپ کو مانتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو صرف بیٹے کو مانتے ہیں. بہت سارے کہتے ہیں کہ بیگانہ زبانیں بولنا ضروری نہیں. بہت سارے کہتے ہیں کہ بیگانہ زبان نعمت ہے. سو میرے عزیزوں، میری یہ کوشش رہے گی، میرے بھائی صاحب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پرس سے اسٹارٹ کریں تاکہ آج جو بات میں لے کر آیا میں بیان کروں. لیکن سو پھر بھی میری یہ کوشش رہے گی کہ میں جو وقت مقررہ مجھے دیا گیا اس میں اس میسج کو کلوز کروں. اس بات کی یاد رکھیے کہ ہم نے روح القدس کے بپتسمے کی اہمیت کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. بیگانہ زبان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم روح القدس کے بپتسمے کی بات کریں گے تو میرے عزیزوں نعمت اور نشان، اس کو یاد رکھیے، نعمت اور نشان. جب میں میسج کلوز کروں گا تو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا نعمت اور نشان. سو اسے یاد رکھیے، میں اس کو ضرور بیان کروں گا لاسٹ میں، نعمت اور نشان. سو میرے عزیزوں، یوحنا استغفاری نے کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آئے گا وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ جیسے واٹر بپتسم ضروری ہے، پانی کا بپتسمہ ضروری ہے، اسی طور پر روح القدس کا بپتسمہ بھی بے حد ضروری ہے. اب دیکھیں کہ پانی کا بپتسمہ تو دینے کے لیے خدا نے اپنے خادمین کو مقرر کیا جو پانی کا بپتسمہ دیتے ہیں، لیکن پاک روح کا بپتسمہ یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ باپ سے روح حق کو صادر فرماؤں. میرے عزیزوں، روح القدس کا بپتسمہ بے حد ضروری ہے. تثلیث کے اقانیم میں باپ، بیٹا اور روح القدس. پہلا دور جو باپ کا دور تھا جس میں باپ نے نبیوں کی معرفت کلام کیا. دوسرا دور جو بیٹے کا دور تھا اور بیٹے نے آ کر کلام کیا. اور تیسرا دور جسے ہم فضل کا دور بھی کہتے ہیں، روح القدس کا دور ہے. اس دور میں روح القدس کا ہونا بے حد ضروری. اب آپ ذرا دیکھیں، یسوع نے ایک جگہ پر کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. پھر یسوع نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. پھر یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار. اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں ایک ایک ورس نکالیں، تو میں زبانی بات کروں گا. دوسرا مددگار بھیجوں. آپ ذرا دیکھیں، اگر ایک جگہ پر کمپنی میں کوئی بھائی یا بہن کے کام کر رہی ہے اور اگر وہ سارا دن اس کے ساتھ کوئی ہیلپر نہیں ہے، خود ہی کام کرتے رہیں گے تو پھر شاید آرام کرنے کے لیے وقت نہیں ملے گا. لیکن اگر بہن آپ کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھ خواتین مل جائیں تو پھر کیا ہوگا، آپ کو گھر کا یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کو ریسٹ کرنے کا، آرام کرنے کا وقت ملے گا. پہلا مددگار تو یسوع خود ہے جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کی. بات سٹارٹ کروں گا. بہت سارے مقاصد ہیں کیونکہ مددگار کے. ایک تو جیون ساتھی بھی مددگار ہے، دکھ سکھ کا ساتھی، عہد کرتے ہیں نا جی، دکھ سکھ کا ساتھی. اسی طور پر یسوع ان کی رہنمائی کر رہا ہے تاکہ شاگردوں کو کی تربیت کر سکے، نصیحت کر سکے اور انہیں گائیڈ کر سکے تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں. اب آپ دیکھیں، یسوع کروسیفائیڈ ہوا، مر گیا، تو یسوع نے شاگردوں کو آدم گیر بنایا تھا. اب کتاب مقدس اناجیل کو پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا شاگرد گمراہ ہو گئے، ڈرے بیٹھے ہیں
چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. خواتین صبح سویرے گئی تو ضرور, لیکن کاش خواتین جاتی خالی قبر کو دیکھنے, لیکن وہ تو مسیح کی لاش پر خوشبو بکھانے جا رہی ہے. میرے عزیزوں, اور اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل میں دیکھیں تو وہی پترس جسے یسوع نے کہا آپ کے بعد تو آدم گیر ہوگا, یسوع کے مر جانے کے بعد وہ پھر سے مچھلیاں پکڑا. بیک سلائڈ. اس کا مطلب ہے مددگار کے ہاتھ ضروری ہے. اور یسوع جب آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو یسوع نے کہا, ٹھیک ہے, زبانی بات کریں گے. اب پہلا بات اس کی 8 میں, یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس آنے والا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. اس میں روح القدس کا بپتسمہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ قوت کا لباس ہے. اسی طور پر مددگار ہے, قوت کا لباس ہے. اس گھنونی زندگی میں, زمانے میں, اس طور پر پیٹ پر, اس طور پر ہم بڑھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے اگر دوسرا مددگار روح القدس نہ ہو. دوسرا مددگار روح القدس نہ ہو. بہت ساری باتیں روح القدس کے مددگار کے بارے میں, لیکن ساری بات دیکھیں وہ خود ہماری روح کے ساتھ مل کر ایسے ہی آگے بڑھتا ہے. ذرا بیٹھے رہے, دعا کریں, آدھا گھنٹہ ختم. لیکن جب روح القدس مل جاتا ہے ساری رات پتہ ہی نہیں لگتا ہے. ہر ایک کلیسیا میٹنگ تھی اور میں بھائی جمع تھے اور ٹیسٹمنی شیئر ہو رہی تھی, دعائیں شیئر ہو رہی تھی. پاکر نے مجھے بولا, میں نے کہا وہ دعا کریں, 10 منٹ دعا کرتے ہیں, 1.5 گھنٹے کا پتہ نہیں لگا. مددگار روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. جیسے گمراہ ہونے بہت ساری معاملات میں روح القدس مددگار ہے, اور اس زمانے میں ایک مددگار کا ہونا بے حد ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طور پر جس کو خدا چاہتے ہیں پڑے, مددگار کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور بھی کچھ باتیں روح القدس کے بارے میں, کچھ باتیں آپ دیکھیں. آئیے میں کرنتھیوں اس کا پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب سوری 12 باب اور اس کی 4 آیت. نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے. اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے, جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے, لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام, اور دوسرے کو اسی روح کے وسیلے سے علمیت کا کلام, اور کسی کو اسی روح سے ایمان, کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی توفیق, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح رکھتا ہے, جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. اب روح القدس کے پھل بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ساری بھی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, خدمات بھی ہیں. لیکن اس میں سے بھی, ان نعمتوں میں سے بھی صرف میں اپنے ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں. اس نعمتوں میں سے بھی صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے 1-2% بات کروں گا. یہ ہے کیا؟ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں, 9 نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور روح ایک ہی ہے. 11ویں آیت میں ہم نے پڑھا, جس کو چاہتا ہے اس کو بانٹتا ہے. اس کا مطلب ہے نعمتیں بانٹنے والا روح القدس ہے, خدمتیں دینے والا خداوند ہے. اب دیکھیے جی, میں تو صرف خدا کا خادم ہو کے کلام مقدس سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں, لیکن منت کرتا ہوں, دعا کو ہوں کہ خداوند اپنے الہی بھید آپ پر آشکارا کرے اور آپ ان تمام باتوں کو سمجھ سکیں. میرے عزیزو,
طرح طرح کی چوتھی آیت میں مگر روح ایک ہے. 8ویں آیت میں نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جس کو چاہتا ہے اس کو بانٹتا ہے. ایک کو حکمت کا کلام, علمیت کا کلام. اب سب کے پاس حکمت کا کلام نہیں, دنیاوی حکمت بھی ہے, لیکن اب الہی حکمت کی بات کریں گے, زیادہ بات نہیں کروں گا. اسی طور پر علمیت کا کلام بھی سب کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پیچھے لکھا ہے معجزوں کی قدرت, خادم الدین مبشر تو بہت ہے, ٹھیک ہے, کلیسیا میں بہت سارے لوگ ہیں ایماندار, لیکن ہر ایک کے پاس یہ نعمت نہیں, معجزوں کی نعمت نہیں. اسی طور پر لکھا ہے اور کسی کو اسی روح سے ایمان, کسی کو اسی روح سے ایمان. 11ویں آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. اس کا مطلب اس کا مطلب اگر وہ ایمان بانٹ رہا ہے تو جن کو اس نے ایمان دے دیا وہ تو ایماندار, باقی سارے بے ایمان ہے نہیں, باقی سارے بے ایمان ہے نا. بہت سارے سال ہل رہے ہیں, بہت سارے سال کیا ہو رہے ہیں, ہل رہے ہیں. میرے عزیزو آئیے, یہ کیا بات ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ہمیں پتہ تو ہو نعمت کیا ہے. نعمت کو سمجھانے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں, اگر ایک جماعت میں بہت سارے خاندان ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. چلے جی آپ کے چرچی کی بات بتا رہا ہوں, یہاں پر بہت سارے خاندان بیٹھے ہیں. اب ہر خاندان کا ذریعہ آمدن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے وہ کماتے ہیں, اور ہر خاندان کا گزر بسر کسی طریقے سے ہو رہا ہے. بعض کا کچھ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, بعض کا کیا ہاتھ کو سکیڑ کے ہو رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کلیسیا میں, ایک مجمع میں کوئی ایک آدھ ایسا خاندان بھی ہو جس کے 2-3 اکاؤنٹس ہیں. شاید دبئی میں بھی اکاؤنٹ ہو, انگلینڈ میں بھی اکاؤنٹ ہو. اس کا گزر بسر ہاتھ کھینچ کے نہیں ہو رہا, بلکہ کیا رہا ہے, کھل ڈل کر ہو رہا ہے. یتیموں غریبوں کی بھی وہ کیا کر رہا ہے, مدد کر رہا ہے. اس کے پاس کافی پیسے. اب غور کیجئے گا, پیسے تو ہر خاندان کے پاس ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ذریعہ آمدن کا ہے. پیسے تو ہر ایک کے پاس ہیں, لیکن جس کے پاس کثرت سے پیسے ہیں وہ صاحب نعمت ہے. وہ کیا ہے, صاحب نعمت ہے. میرے عزیزوں, مسیح پر ایمان رکھنے سے جتنوں نے اسے قبول کیا, رسول کی نیوز کا پہلا باب 12 میں جتنوں نے اسے قبول کیا, اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, نہ جسم سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسانی ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. مسیح پر ایمان رکھنے سے, ایمان رکھنے سے ہم ایماندار ٹھہرے. پہلا سادی کا نام دے پا رہے ہیں, ہم ایماندار ہیں. ہاللویا, ہم ایماندار ہیں کیونکہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, ہم ایماندار ہیں. یہ ایمان کی نعمت کیا ہے, میں صرف ایک نعمت کو سمجھاؤں گا اور باقی آپ میرا ایمان آپ سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر خدا نے چاہا تو آپ کے خادم آپ کو مزید بتائیں گے. یہ ایمان کی نعمت ہے. میرے سنو, ایک مرشد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. خدا کے خادم آپ جانتے ہیں پاسو کی ڈالنے میں کہنی تھی, میری زندگی میں بہت سارے مرشد ہیں, لیکن آئیے میں ان کی ایک مرشد کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا لاہور میں کنونشن, اور انہیں موقع ملا کہ وہ ترجمہ کریں, اور ہیلنگ سیشن ہوا, مختلف بیمار آئے, دعائیں کی گئی, اور اس کے بعد 70-80 ہزار کے قریب مجمع. اس کے بعد 35-40 کے قریب لنگڑے آ گئے. اس خادم نے کہا ان لنگڑوں سے کیا کر لو, بیساکھیاں لے لو, ان لنگڑوں سے بیساکھیاں لے لو. ان سے بیساکھیاں لے لیجیے. اسٹیج کے پاس ہی کچھ جگہ پر اس خادم نے کہا ان بیساکھیوں کو آگ لگا دو, جلا دیا. ابھی ذرا دیکھیے کہ میرے عزیزوں, ابھی دیکھیں لنگڑوں میں شفا پائی نہیں, لیکن اس خادم نے بیساکھیوں کو آگ لگا دی, کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتا تھا کہ یہاں سے کوئی بھی لنگڑا نہیں جائے گا, سارے چھل کر جائیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان تو ہم سب کے اندر ہے, لیکن ایک ایمان ایسا ہوتا ہے. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. لاسٹ ڈے پہ ایسا ہوا, وہ بتانے لگے, ایک جوڑا ہے, سب لوگوں نے بیماروں نے دعا کرا لی, وہ جوڑا ہے,
7-8 साल का बच्चा उस भाई ने उठाया होगा और खादम से कहा दुआ करें। खादम ने कहा किस लिए? उस बच्चे के पैदाइशी पाँव ही नहीं थे, दोनों पाँव नहीं है, इसके लिए दुआ करें। और नबी खादम ने बताते कि मेरी और खादम की जब निगाह पड़ी तो उस भैन ने जूतियों का जोड़ा भी पाया। हालेलुया। इस ईमान से वो जोड़ा आया कि आज आखिरी दिन है और चलते चलते रास्ते में 7-8 साल के बच्चों की उन्होंने दुकान से शॉपिंग की, जूती भी लाई। इस ईमान से कि आज जब खादम दुआ करेगा तो हमारा बच्चा चल कर आएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है ईमान की लेवल। जिसको चाहता है बांटता है, ऐसा ईमान हर एक के पास नहीं। जिसको चाहता है ये नेमत है, बांटता है। और ये नीचे अगर देखिए तो लिखा है किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को जुबानों का तर्जुमा, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को तरह तरह की जुबानें। यहीं से तो गलत फहमी पैदा हुए, यहीं से तो बहुत सारे खादम दी, यहीं से तो बहुत सारे प्रोफेसर सवाल कहते हैं जी जुबानें क्या है? जुबानें क्या है? नेमत है। जुबानें क्या है? नेमत। जी हाँ, यहाँ नेमत में भी आया, लेकिन मैंने आपको कहा था याद रखिए निशान और नेमत। सो आप इसको आगे चल रहे हम ध्यान करेंगे। आइए अमाल पहला बाब उसकी पहली आयत से। जी मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तस्नीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा उस दिन जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाए। ऊपर भी एक बात लिखी हुई है, रूह कुद्दस के वसीले से उन्हें हुक्म दिया, कमांड दी, हुक्म दी, हुक्म मिल गया। पास्टर साहब आप छुट्टियां करें, छुट्टी का हुक्म मिल जाएगा। पास्टर साहब आपने बन्नू जाना है तो जाएंगे, क्योंकि सीनियर ने क्या दे दिया? कमांड दे दिया, हुक्म दे दिया। रूह कुद्दस के वसीले से यीशु ने क्या कर रहा है? हुक्म दे रहा है। और फिर जरा देखेंगे, उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। ये बाप का वादा है। रूह कुद्दस का बपतिस्मा बाप का क्या है? वादा। जरा देखिए हिस्कियल की किताब में लिखा है, आखिर ज़माने में मैं हर फर्दो बशर पे अपनी रूह में से नाज़िल फरमाऊंगा। जो आप में से रूह कुद्दस का जिन्हें बपतिस्मा हो गया, खुदा आपको बरकत दे, और जिन्हें नहीं हुआ आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपने ज़हनों को क्लियर कीजिए। ये ना सोचिए ये सिर्फ पास्टर समान के लिए है, एल्डर समान के लिए है, जो लीडरशिप में है उनके लिए है। नहीं मेरे अजीजों, रूह कुद्दस का बपतिस्मा सबके लिए। ये बाप का वादा है, ये नेमत नहीं है। सो मेरे अजीजों, उस वादा के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। यीशु आसमान पर उठाए जाने को था तो यीशु ने हुक्म दिया। हाँ जी, कौन सा हुक्म दिया? हाँ जी, अरशाद आज़म की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हुक्म दिया। ये तो बात को दिया, उससे पहले हुक्म दिया, ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठीक है, बाप का वादा पूरा होने को है, थोड़े दिनों के बाद तुम्हें रूह कुद्दस मिलने को है, ठहरे रहो। ये हुक्म था मेरे अजीजों। और लेकिन जरा देखें, ईद पेंटिकोस्ट के दिन आप जानते हैं वक़्त साहब मरियम मगदलीनी, वो खवातीन जो यीशु की हम खिदमत साथी थी, 12 रसूल, 70 बुजुर्ग, 120 की जमात दुआ कर रहे हैं 9 दिन तक
यीशु के आसमान पर उठाए जाने के 9 दिन तक दुआ करती रही, 10वें दिन रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों, 10वें दिन रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और वो रूह कुद्दस से आप जानते हैं भाग्य अमाल 2 बाब में ये बात लिखी है। और जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि ये आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाता होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला से फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ऊपर जरा देखें, आग की शोला से फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, हर एक पर आग ठहरी। यानी जितने जमात में मौजूद है 120 की जमात है, 120 की भी अगर नेमत होती तो 30 पर आती, नेमत होती तो 40 पर आती, लेकिन ये तो सब पर ठहरी। और लिखा सब तरह तरह की जुबानें बोलने लगी। ये तो सारे जुबानें बोलने शुरू हो गए हैं, यानी ये क्या माजरा हो गया है, ये तो सारे जुबानें बोल रहे हैं। यरूशलेम में आदमी मरती थी और वहां तिजारत होती, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी बोली सुनाई देती है, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करने लगे, खुदा का शुक्र है ये माइक ना भी हो तो खुदा ने मुझे गला ठीक नहीं है, लेकिन खुदा ने फिर भी मुझे साउंड सिस्टम दिया है, 150-200 आदमियों में मैं फिर भी बोल सकता हूँ। हालेलुया। तो अगर मेरी इतनी आवाज है तो 120 की जमात जब दुआ कर रही होगी और रूह कुद्दस का जब मसला आया होगा, बिगिनिंग में थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो फिर तो शोर होगा, बात इकट्ठा करने लगे। ये ताजा महके उन्हीं मसीहों की तरह, उन्हीं नामी लोगों की तरह, मसीहों की तरह जो जानते नहीं और कहते हैं फायदे वादे हो गए, पता नहीं उनका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया, अपने कानों से सुना, ठीक है, पता नहीं कि बक बक करते रहते हैं, पता नहीं कि शोर शराबा है, शुरू का नहीं है। उनके अंदर तड़प ही नहीं डाली गई, उन्हें बताया नहीं गई आगे रूह कुद्दस के बारे में। आज ये नेमत है, मिलनी होगी तो मिल जाएगी। उनके अंदर भूख और प्यास नहीं है, जो ऐसी मुखालफत करते हैं बेगाना ज़ुबानों की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए सुस्त घुटनों ढीले हाथों को मजबूत करने की जरूरत होती है। 120 की जमात 9 दिन तक क्या करती रही, इबादत की किताब के मुताबिक कुर्बानियों को पेश करती रही। उन्हें अपने सिन, उन्हें अपने गुनाह याद आ रहे हैं और वो अपने आप को पेश कर रही है। हाँ, तुम कहता था यीशु मैं तो कब इंतकाल हो गया, पतरस को याद आया, मैंने तो कहा था कि मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, और मैंने 3 दफा तुझ पर लानत की। वो अपने पोशीदा गुनाहों का भी इकरार कर रहे थे, अपनी कुर्बानी को इबादत की किताब के मुताबिक उज़्र पेश कर रहे थे। तो लिखा है जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह तेरे लिए क्या हो जाए, तरसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, प्यास इस कदर बढ़ जाए। अमीर आदमी जहन्नम में है, आग में है, और एक कतरे के लिए मिन्नत करता है, बाप इब्राहिम से एक कतरे के लिए मिन्नत करता है। प्यास रूह कुद्दस को पाने की, रूह कुद्दस के हासिल करने की, बपतिस्मे की प्यास इस कदर बढ़ जाए कि हम तेरे पास रूह के बगैर, तेरे इस बपतिस्मे के बगैर हम कुछ नहीं। और जब आपकी प्यास का लेवल उस तौर पर हो जाएगा, जब आपकी कुर्बानी उस तौर पर हो जाएगी, तो फिर देर नहीं होगी, फिर देर नहीं होगी। रूह कुद्दस का बेशक आप अपने घर में बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने आटा गूंद रही है, मैंने सफाई कर रही है और इनकी लोग खुदा की तरफ लगी हुई है, रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो गया। बहुत सारे ऐसी जिंदगी है जो मैंने गवाही दी, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आंखें तो खुली है पर लोग खुदा के साथ लगी है, खुदा के साथ लगी है, और रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो गया। एक भाई इस सीधे के पेंतिकोस्त में मर्दान से मिसालपुर भी आया, प्रधान भी उनकी आग उसके पति, मैंने कहा भाई फिक्र ना कर, रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो जाएगा। अक्कर तड़प थी, सोमवार को भी, मंगल को रात 2:30 बजे दुआ करना है, 2:30 बजे दुआ करना है, ठीक है, बीवी बच्चे सो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो गया। सुबह 3 बजे मुझे मैसेज किया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा क्या है, किसी का तरफदार है, भूख और प्यास लाने की जरूरत है। आइए करंथियों में से बात करूंगा, करंथियों में 14 बाब उसकी दूसरी आयत, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता,
बल्कि खुदा से इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से ढेर की बातें कहता है। जो बेगाना जुबान में, गैर जुबानों में बातें करता है, किससे बातें करता है? खुदा से बातें करता है। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, चाहे मैं कि मिनिस्ट्री का चेयरमैन हूं, क्या मेरा हक है, क्या किसी बिशप का हक है, क्या किसी खातम का हक है कि अगर आपका राबता खुदा के साथ है, आपका टेलीफोन कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, आपका राबता खुदा के साथ है, आप खुदा के साथ बातें कर रहे हैं, तो हम रोके? पौलुस कहता मैं बहुत सारी जुबानें, उनमें सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं, लेकिन उसने कहा जुबानें बोलने से मना ना करो, मना ना करो। जुबानें बोलने से ये जरूर अलग टॉपिक है, कनीने और शाइस्तगी से, इसके बारे में फिर हम जानेंगे और सीखेंगे। लेकिन जो बेगाना जुबान में बातें करता है, खुदा से बातें करता है, आइए खुदा से बातें कीजिए। कौन होता है जो आपको रोकता है? जो आपको रोकता है, किनारा कर लीजिए उससे और सच्चाई को ढूंढिए, सच्चाई की तरफ आए, सच्चाई में रहेंगे, सच्चाई के पास आएंगे तो आप आजाद होंगे, बरकत पाएंगे, तरक्की होगी। मेरे अजीजों, नीचे लिखा है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमी से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। जी, नेमतों से एक नेमत, जो नबूवत करता है आदमी से तसल्ली, नसीहत और तरक्की की बातें करता है, होनी चाहिए। और जो बेगाना ज़बान में बातें करता है, जो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। मैंने रखा आपके बटने में पैसे होंगे तो फिर आप किसी यतीम बेवा की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको तो खुद जरूरत है। देखिए जी, बहुत सारे मुखल्फीन ये कहते हैं बेगाना जुबान की तो किसी को समझ नहीं आती। मैं भी मानता हूँ, कलाम भी कह रहा है जो बेगाना जुबान में बातें कर रहा है, साथ वाले साथी, अगर मैं अराबी यूनानी मुझे नहीं पता, जिस भी जुबान में अगर मैं दुआ कर रहा हूँ, खुदा से बातें कर रहा हूँ, तो किसी को समझ नहीं आ रही। वो कहती है जब बेगाना जुबान में साथ वाले को, कलीसिया को समझ नहीं आ रही, तो बेगाना जुबान में बोलने की क्या जरूरत है? हाँ जी, और वो कहते हैं नबूवत करो, क्योंकि नबूवत से क्या है? कलीसिया की तरक्की है, दूसरों की तरक्की है। तो उनके लिए मैं यही एग्जाम्पल दूंगा, तुम्हारी जेब भरी होगी तो दूसरों की तरक्की कर सकते हो, क्योंकि लिखा है जो बेगाना जुबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जब आपकी तरक्की होगी तो आप दूसरों के लिए तरक्की कर पाएंगे। इसलिए बेगाना जुबान में बोले, ठीक है, क्योंकि सियासी क्या होगी तरक्की होगी। आप खुदा से बातें करेंगे, खैर की बातें करेंगे। और बड़ी जबरदस्त एक और बात बताना चाहता हूँ, तू तो बेशक अच्छी तरीके से शुक्रगुजारी करता है, मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। ठीक है, बेगाना जुबान के लिए है, तू बेशक अच्छे तरीके से शुक्रगुजारी, हम उस तौर पर शुक्रगुजारी कर ही नहीं सकते, लेकिन जब बेगाना जुबान आ जाती है तो जिस तौर पर हमें खुदा की, जिस तौर पर वो खुदा हम तारीफ और शुक्रगुजारी बुजुर्गी के लायक है, उस तौर पर हम शुक्रगुजारी कर पाते हैं बेगाना जुबान। अब मेरे अजीजों, ठीक है जी, 10 मिनट मेरे पास हो रहे हैं। अब मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 20 बाब, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप खिदमत के लिए निकल रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बातें आप तक पहुँचा दूँ ताकि आप उन तमाम लोगों को जवाब दे सकें जो खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 20 बाब 19 आयत से, फिर उसी दिन जो हफ्ते के पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के घर से बंद थे, तो यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। ये उस वक्त की बात है जब यीशु जिंदा हो गया, दरवाजे बंद है, यीशु आ गया और कहने लगा तुम्हारी सलामती हो। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर और ये कहकर उसने अपने हाथ और पसली उनको दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं। आगे यीशु का कहना है, गौर कीजिएगा,
اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. ہاں جی ایک اور غلط فہمی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ بھی کلیئر ہو. یسوع نے ان پر پھونکا پھونکا. اب اندر سے پھیپڑوں سے اندر سے ہوا نکل گیا, اندر سے پھونکا اور کہا روح القدس لو. سوال ہے کیا انہیں روح القدس ملا؟ سوال ہے کیا انہیں روح القدس ملا؟ جی ہاں جی ملا. آپ خاموش ہیں. انہیں روح القدس ملا؟ آپ کو کلوز کر دیں گاڑی کلوز کر دیا چل رہی. اچھا اسپیس نہیں. ہاں جی ملا. صرف ایک جواب دیا ہے دیگر صاحب نے. دیگر صاحب کے لیے تعریف بجائیں گے. مالک نے یسوع نے کہا تھا نہیں ملے گا روح القدس نے ملا. روح القدس نے ملا پھونکا روح القدس لو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح القدس کو ملا لیکن بیگانہ زبان نہیں, کیونکہ بیگانہ زبان کو عید پینتیکوس کے دن اور اس کے بعد سے بیگانہ زبانیں. جب پترس واس کرنے لگا, جب کہنے لگے یہ تازہ مہکے نسل میں ہے, پترس واس کرنے لگا تو لکھا ہے ہمارا دوسری باب 37 آیت میں ان کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ رسولوں نے کہا توبہ کرو, تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے تو روح القدس انعام پہ پاؤ گے. نعمت نہیں لکھا گفٹ ہے, جب ہم مسیح کو قبول کرنے پہ ہمارا رائٹ ہے انعام. یہ والا تم سے تمہاری اولاد سے جو سن رہے تھے, یہ وعدہ تم سے تمہاری اولاد سے جو پیدا ہونے کو تھی, یہ پیدا تھی, اور ان دور کے لوگوں سے جنہیں خداوند خدا اپنے پاس بلائے گا. ہم سب دور کے لوگ ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ دور کے لوگ ہیں. کیسے ہیں پھر کبھی دیکھیں گے. میں نے سب کو اس بات کو بیان کیا, ایک پوائنٹ دیا کہ کیسے ہم دور کے لوگ ہیں. نسل کے اعتبار سے چلتے چلتے ہم یہودی نہیں, ہم دور کے لوگ ہیں. انہیں بلائے گا. خداوند کا یہ وعدہ ہے, باپ کا یہ وعدہ ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. بیگانہ زبان نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, روح القدس نے ملا, بیگانہ زبان نہیں تھی. اب ذرا دیکھیں پرانے عہد میں نبیوں کے پاس روح القدس تھا. نبیوں کے پاس روح القدس تھا. اسرائیل کے پہلے بادشاہ سول مصر مسا کیا گیا, روح القدس ٹھہر گیا. سول پھر جا رہا ہے نبیوں کی ٹولی کے ساتھ, وہ بھی شامل ہو گیا اور نبیوں نے نبوت کی تو اس نے بھی نبوت کی. میرے عزیزوں اسی طور پر آپ ذرا دیکھیں دور پر زور زور سے خدا کی روح آتی تھی. ایسے تو نہیں زبور کی کتاب لکھ دی. کیسے بھید, کیسے مکاشفے. یسوع کے آنے کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں, روح القدس کی تحریک سے سب کچھ لکھ دیا. میرے عزیزوں جدون پر خدا کی روح تھی, شمشون پر خدا کی روح آتی تھی. نبیوں پر اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں, نبیوں پر بادشاہوں پر خدا کی روح تھی. اور خطوط میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس روح نہیں تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. پڑھیے یہ بات, کسی کے پاس اگر روح نہیں تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں آپ کے پاس بھی روح ہے, آپ کے پاس بھی روح ہے, آپ کے پاس بھی روح القدس ہے. اب ذرا دیکھیں پرانے عہد نامہ میں معجزے بھی ہو رہے ہیں. ایلیا کے وسیلے سے, الیشا کے وسیلے سے, موسیٰ کے وسیلے سے, اور بہت سارے معجزے بھی ہو رہے ہیں, نبوت بھی ہو رہی ہے. روح ہے ان کے پاس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معجزے بھی ہیں, نبوت بھی ہے, منادی بھی ہو رہی ہے, تو پھر بیگانہ زبان کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی, پھر بیگانہ زبان کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ نبوت بھی ہو رہی ہے, معجزے بھی ہو رہے ہیں, روح ان کے پاس ہے, پھر بیگانہ زبان کی کیا ضرورت ہے؟
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें तो हम सीख चुके हैं। जो बेगाना जुबान में बातें करता है खुदा से बातें करता है, जो बेगाना जुबान में बातें करता है भेद की बातें करता है, जो बेगाना जुबान में दुआ करता है अपनी तरक्की करता है, वो अच्छे तरीके से शुक्रगुजारी करता है। आज इसके अलावा भी एक दो और बात बयान करना चाहता हूँ। हाँ, आप जरा देखें, बतेरे आए यीशु जब शिगिर्दों को भेज रहा है मुनादी के लिए, तो मोशे को शिगिर्द भी कर रहे थे। दो पहले भेजा ना, मोशे तो उस वक्त भी शिगिर्द कर रहे थे, गैर जुबान तो उस वक्त भी नहीं थी। कहने लगे यीशु ये हमारी टीम का नहीं है, ये हमारी टीम का नहीं है, लेकिन क्या करता है तेरे नाम से मोशे करता है। तो जब तख्ते अदालत हम लगेगी उस वक्त यीशु बाज लोगों से कहेगा आए मलूनो दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु तेरे नाम से हमने मजलूमों को निकाला। मेरे अज़ीज़ों, मोजों के पीछे ना जाए, मोजों के पीछे ना जाए, शाफी के पीछे जाए। शाफी को अपने खानदान में, शाफी को अपनी जिंदगी में रखें। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी तौर पर पुलिस को भी आप देखें, मोजे तो और जगह पर नहीं हो रहे। सो मैं ये बात बता रहा हूँ, यीशु ने फूंका, रूह उन्हें मिला, रूह तो नबियों के ऊपर बादशाह के ऊपर भी था, बेगाना ज़बान है नहीं थी। और जब सब कुछ है तो फिर बेगाना ज़बान की क्यों जरूरत है? कुछ बातें हमने सीख चुकी है, क्यों बेगाना बेहद ज़बान बेहद जरूरी है। आइए एक और बात मैं बताना चाहता हूँ ईसाया नबी के सहीफे में से। ईसाया नबी का सहीफा, उसका 28 बाब, उसकी 11 आयत। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा। बेगाना लबों अजनबी जुबान यानी गैर जुबान जिससे आप वाकिफ नहीं है, उनसे कलाम करेगा। ठीक है जी, बेगाना जुबान के वसीले से वो क्या करेगा? उनसे कलाम करेगा। आइए आगे सुनिएगा। अब बात हो रही है बेगाना जुबान की, बेगाना लबों की, बेगाना जुबान की बात हो रही है। जिनको उसने ये फरमाया ये आराम है। हालेलुया। बेगाना ज़बानें ये क्या है? आराम है। हालेलुया। तो पहले भी था, लेकिन बेगाना ज़बान की इसलिए जरूरत थी क्योंकि ये क्या है? आराम। और तुम थके मानों को आराम दो, ये आराम है। हम किस्तों पर डिसहार्ट नाउमीद हो जाते हैं, लेकिन जो ही उसके कदमों में झुकते हैं पाक हुआ जाता है। बेगाना ज़बान हमें इत्मीनान तसल्ली जारी करती है। ये पाक रूह है जो हमारे दिलों में उम्मीद को जारी कर देता है, तसल्ली को जारी कर देता है। सो एक और बात हमने सीख ली कि बेगाना ज़बान क्या है? आराम है। और एक और बात सुनिए, और ये ताजगी है। हालेलुया। ये क्या है? ताजगी है। जब आप थके मांदे हैं, आप बिल्कुल क्या हो रहे हैं? ऐसे जैसे कि मर जाएंगे पानी के बगैर, और जब आप आ जाते हैं और दुआ में झुक जाते हैं, अपना उम्मीद है, आप परेशान हैं, आप चारों तरफ से मुखालफत में घिरे हुए हैं, और आप जब झुक जाते हैं दुआ में और बेगाना ज़बानें बोलना शुरू करते हैं, तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं। ये क्या है? ताजगी। ये आराम है और ये ताजगी है मेरे अजीजों। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बता रहे हैं। और एक और बात करना चाहता हूँ, बेशक भी देखेंगे सफनिया की किताब में लिखा है, वो बेगाना लबों, ठीक है जी, वर्ड लफ्ज जो वहां पर आ रहा है, ये बेगाना ज़बान के जरिए से तुम्हारी बोली पाक करेगा। मेरी और आपकी बोली जो भी ज़बान हो वो पाक है नहीं। हम कितनी बार कोशिश करते हैं, बातों में खता कर जाते हैं, हो जाती है ना, बातों में हमसे खता, हमारी बोली पाक है नहीं है। ठीक है, उसमें नफरतें पाई जाती हैं, बिदअतें पाई जाती हैं। हम जितनी भी दुआ करने वाले हों, ठीक, हमारी बोली पाक है नहीं है। जिस तौर पर खुदा पाक है, बदी को देख नहीं सकता, गिरफ्तारी पर निगाह नहीं करता, जिस तौर पर खुदा पाक है, हम उस तौर पर लायक तरीके से उसकी हमदो
बोली बात होती है और हम उस तौर पर खुदा की हम तारीफ और शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आइए आखिरी बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था नेमत और निशान को याद रखिए। वक्त नहीं कि मैं मज़ीद बात करूं, लेकिन मेरे पास बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे रेफरेंस हैं। कुरनेलियस के घर में क्या हुआ जानते हैं? पतरस पर हमारा 10 वाक़े से बात करो। पतरस पर चादर उतरी। बहुत सारे कहते हैं खाओ पियो जी, पतरस पर भी तो चादर उतरी। लेकिन याद रखिए कि पतरस और बाकी रसूल सिर्फ उस वक्त तक यहूदियों तक महदूद थे, मुनादी कर रहे थे, जबकि यीशु ने कुल जहान की खातिर अपना खून बहाया। और वहां पर कुरनेलियस पर ये फरिश्ता को ख्वाब में देखा। ठीक है, बादशाह करूंगा। सो पतरस उनके घर में कलाम सुना है। वो सारे कहते हैं ना, कोई अच्छा हारमोनियम बजा रहा है तो गुरु है, कोई अच्छा गा रहा है जिसका वक्त है, कोई बहुत क्या है नेक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदुइज्म में, सिखिज्म में, बल्कि मुसलमानों में भी कितने और फिरकों में भी कितने ऐसे लोग हैं जो लाखों का राशन यतीमों बेवाओं को बल्कि क्या करते हैं पर मन समुंदर में डालते हैं। अच्छा आप भी जानवरों के लिए भी, वो भी तो बहुत सखावत करने वाले हैं मेरे अज़ीज़ों। लेकिन रूहुल कुद्दस का बपतिस्मे का एक निशान है। लिखा जब वो कलाम सुना रहा था तो वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। पतरस की टीम, जैसे पास्टर अमर अपनी टीम के साथ गुजर करता है, पतरस की टीम कहने लगी गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्दस की बख्शिश जारी हुई। वो हैरान हो गए, ये क्या हुआ? कैसे पता चला उन्हें? कैसे पता चला? कैसे पता चला? निशान, दाग, नुक्ता, वो जो सामने नजर आए। जैसे पौलुस कहता है मैं निशान की तरफ हम भागे दौड़े जाता हूं, नजर आए टारगेट, गोल, निशान वाज़िया, जिससे कोई चीज क्या हो जाए, वाज़िया हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लिखा है क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोल के सुना और खुदा की तमजीद करते हुए सुना। तब उन्हें पता चला कि क्या हो गया, ये इतने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हो गया। याद रखिए जी, रूह तो है हम सबके पास मसीह को कबूल कर लेने से, लेकिन अफसर साहब 3-4 दिन होना चाहिए। रूहुल कुद्दस तो है क्योंकि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमने एक आयत पीछे पढ़ी, जितना ने कबूल किया इससे पैदा हुए, खुदा से पैदा हुए। खुदा का यानी कलाम का तुखम हमारे अंदर है। और याद रखिए एक बीज के अंदर एक छोटा सा बीज है, लेकिन उस बीज के अंदर ये खूबियां हैं कि वो एक पूरा दरख्त है और फल देने की उसके अंदर एक खूबियां हैं। मानते हैं एक इंसानी तुखम के अंदर एक इंसानी सिमन के अंदर पूरे एक शख्स की खूबियां हैं। इसी तौर पर मसीह को कबूल कर लेने पे नो की नो नेमतें, नो के नो फल, खिदमतें, सब कुछ हमारे अंदर है। ठीक है, लेकिन जब हम जान शानी करते हैं तो मुफ्तन वो सब क्या होता है, ज़हूर में आता है। सो मेरे अजीजों, रूह कुद्दस को हासिल करने का जो नशा, रूह कुद्दस को पाने का जो निशान है, ठीक है, कैसे पता चलता है कि रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो गया है? बपतिस्मे को उसका निशान गैर जुबान है, गैर जुबान है। ये चैनल है, उसका निशान क्या है? गैर जुबान है। और फिर बताना चाहता हूँ ये क्या है? सबके लिए अपने आप को क्या कीजिए, ये क्या है? सबके लिए। खुदा के कलाम मुक़द्दस ही में कुरिन्थियों की कलीसिया को उसने ये बात लिखी, 14-23 आयत। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना ज़बानें बोले, जरूर अगर नेमत होती तो लिखा जाता सारी कलीसिया एक जगह जमा हो तो जिन्हें तौफीक है वो गैर ज़बानें बोले, लेकिन लिखा सब के सब, इसका मतलब है हम सबका राइट है, हक है, ठीक है, इनाम है रूह कुद्दस को हासिल करें। अब मेरे अजीजों, मैं निशान की बात कर रहा हूँ। जब रूह कुद्दस मिलता है तो उसका निशान गैर ज़बान है। बाज़ औक़ात जब रूह कुद्दस का बपतिस्मा होता है, जब गैर ज़बान मिलती है, कुछ लफ्ज़ मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात रूहानी से आप एक ज़बान बोल रहे होते हैं, ठीक है,
लिखा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या मैं तुम्हारा आसमानी बाप तुमको रूह कुद्दस नहीं दूंगा? और लिखा है मांग तो तुम्हें मैं तेरी मीरास में दूंगा। लिखा है बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू करो, खासतौर पर नबूवत की। और जब हम आरजू करते हैं, मांगते हैं, और वही जिंदगी जब जानी करती है, मांगती है, तो फिर वो जिंदगी बाज़ जिंदगियों में तर्जमा को, बाज़ को तर्जमा मिल जाता है, बाज़ को गुदरों पर इख्तियार मिल जाता है, बाज़ को तरह तरह की नेमतें मिल जाती हैं, और बाज़ को क्या होता है मेरे अजीजों, तरह तरह की ज़ुबानें। पहले तो वो एक ज़ुबान बोल रहा होता है, लेकिन जब वो ज़्यादा ज़ुबानें बोल रहा होता है तो वही ज़ुबान तरह तरह की ज़ुबानों की क्या बन जाती है? नेमत बन जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, पैसे तो सबके पास है, लेकिन जिसके पास वाफर मिकदार में पैसे हैं वो साहिब नेमत है। इसी तौर पर जब ज़्यादा ज़ुबानें मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है? नेमत बन जाती है। आइए मेरे इसलिए खुदा चाहते हैं इस खीर ज़ुबानें में हम अपने आप को क्या करें, और उसका वादा हाथ के साथ है। वो सबको रूह कुद्दस देना चाहता है, वो सबको पाक रूह देना चाहता है, जो चाहता है कि सबके सब रूह कुद्दस का बपतिस्मा हासिल करें, क्योंकि वो किसी का तरफदार नहीं है। आइए हम अपने आप को बंद करें, आइए सब अपने आप को बंद करें, आइए सब अपने आप को बंद